Hello everyone, welcome to our social science class. Students, we had already done our first chapter of economics class 10th, that is development, in which we had learned about the meaning of development and how the goal of development refers different to different people. Today we'll start our second chapter, that is sector of Indian economy. Sector means the different parts which contribute to Indian economy. Okay, let's begin our today's class. Let's see an overview of the chapter. In this chapter we'll study about the three different types of classification of different sectors that contributes for the growth of the Indian economy. Like, first we'll study about the sectors which are divided or classified on the basis of economic activities, in which we have primary sector, secondary sector and tertiary sector. Then we'll learn it or classify it on the basis of organization, that is organized sector and unorganized sector. And at last we'll do it on the basis of ownership, in which we'll study about private sector and public sector. So first we'll begin with the classification of sectors on the basis of economic activities. First of all, let us discuss that what is economic activities. What does it refer to? So, economic activity concerned with production of goods and services and hence earning of income. This is very important. Earning of income is known as economic activity. It means any activity, any action that we do and that help us to earn money. देखो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कई बार हम लोग सेल्फ कंजप्शन के लिए भी कर रहे हैं. ओके, सो दैट विल नॉट बी रेफर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. सिर्फ उसी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे. कौन सी? इन विच वी आर गेटिंग द income, in which the activity which is helping us to earn or generate the income, that activity is called the economic activity. Okay, now the economy is classified into three sectors. जो पूरी हम लोग इंडियन इकोनॉमी या किसी भी कंट्री की हम लोग इकोनॉमी की बात करते हैं, उसमें जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी वी कैन डिवाइड दैट इकोनॉमिक सेक्टर इनटू three different sectors. The first one is primary sector, second one is secondary sector and the third one is tertiary sector. Primary sector नाम से ही पता चल रहा है, somewhere the base. Secondary sector, that comes at the second number, and the last one is the tertiary sector. We'll study all these sectors in detail one by one. Okay, so let us first begin with the primary sector. Primary sector is the sector that includes activity carried with the help of natural resources. कोई भी वो एक्टिविटी बेटा जिसमें हम लोग नेचुरल रिसोर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं. नेचुरल रिसोर्स नो डाउट नेचर प्रोड्यूस कर रहा है, बट वी आर जस्ट टेकिंग आउट दोज रिसोर्सेज फ्रॉम द नेचर. ओके, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज. Most of the natural product that we get are from agriculture. Therefore, this sector is known as the agricultural and related sector. अभी इसमें देखो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जिसमें नेचर का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री. फॉरेस्ट्री हम कब कर पाएंगे? जब जंगल होंगे, फॉरेस्ट होंगे. फॉरेस्ट तो हम लोग नहीं बनाते. माइनिंग, माइनिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं? मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स को वी आर जस्ट एक्सट्रैक्टिंग दैम आउट. बट वो मिनरल्स कौन बना रहा है? हम तो नहीं बना रहे. वी आर एक्सट्रैक्टिंग दैम फ्रॉम द अंडरग्राउंड डीप इनसाइड द अर्थ. लेकिन वो क्रिएट कौन कर रहा है? नेचर क्रिएट कर रहा है. एग्रीकल्चर अगर हम लोग देखें, कहीं ना कहीं वो लैंड के ऊपर डिपेंड करती है, वाटर के ऊपर डिपेंड करती है. ये सभी क्या है हमारे? ये सभी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. सो वेन एवर वी डू एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ डिपेंडेड अपॉन द नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी. It provides raw material to secondary sector in the absence of which production cannot take place. अभी जो भी हम लोग प्रोडक्शन वर्क करते हैं इन द प्राइमरी सेक्टर, दैट एक्ट और दैट हेल्प एज अ रॉ मटेरियल फॉर द सेकेंडरी सेक्टर. कैसे? वो हम लोग आगे करेंगे. एग्जाम्पल देखते हैं इसमें. एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री देखो हमने यहाँ पे देखा. सो देयर आर डिफरेंट थिंग दैट पोल्ट्री फार्म लोग करते हैं. तो वो सभी किस में आएंगे? वो सभी हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आएंगे. नेक्स्ट इज आवर सेकेंडरी सेक्टर.
Secondary sector, as I told you, is the sector which uses the resources of primary sector as a raw material and transform them into more usable form. और ये काम कहाँ होता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में. सो इट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स. देखो, ट्रांसफॉर्म कर रहा है किसको? रॉ मटेरियल को. ये रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? प्राइमरी सेक्टर से. तो प्राइमरी सेक्टर से ये क्या कर रहा है? रॉ मटेरियल ले रहा है. यानी अब जो प्राइमरी सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन हुई है, जैसे एग्रीकल्चर में हमने कॉटन ग्रो किया, हमने शुगर केन ग्रो किया, हमने वीट ग्रो किया, राइस ग्रो किया, वो चीज़ें जब किसी फैक्ट्री में जाके उनकी फॉर्म चेंज की जाएगी, जैसे शुगर केन से शुगर मिल में शुगर बनेगी. कॉटन प्रोडक्शन को यूज़ करके टेक्सटाइल मिल्स में टेक्सटाइल मिल से पहले तो वो दूसरे वहाँ पे जाएगा जहाँ पे उसके थ्रेड्स बनेंगी. देन टेक्सटाइल मिल्स में उनसे कपड़ा बनाया जाएगा, है ना. तो सेकेंडरी सेक्टर यूजेस द मटेरियल फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर एंड चेंज देम इनटू फिनिश्ड गुड्स. जनरली दिस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन इंडस्ट्रीज एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, या इसको हम बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं. अब आपको सपोज सेकेंडरी सेक्टर ऑप्शन नहीं मिला तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर. ओके. अब ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारी प्राइमरी सेक्टर की चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल तो है, बट हम उसको एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते. हमें उसकी एक जो नेक्स्ट स्टेज है, ओनली दैट वी कैन कंज्यूम. अब गेहूँ आ गई. गेहूँ को क्या आप लोग ऐसे ही यूज़ कर सकते हो? गेहूँ से हम क्या करते हैं? पहले उसको पिसवाते हैं, वी चेंज इट इनटू अ फ्लोर and then we use it to make chapatis or some other eatable material. ऐसे ही शुगर केन, ठीक है, हम लोग डायरेक्टली भी कंज्यूम करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो है जब शुगर की प्रोडक्शन होते हैं तो हम शुगर को यूज़ करते हैं. कपास को हम लोग डायरेक्ट तो घर नहीं लेकर आते, हम लोग कॉटन से बने हुए कपड़ों की या बाकी मटेरियल्स को हम क्या करते हैं? वी यूज़ देम. सो दैट इज़ वाई इट हेल्प्स अस टू transform the raw material from the primary sector into a more usable product that fulfill our requirement. Manufacturing industries like car making, cloth making, sugar making, examples जो है अभी हमने डिस्कस किए हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है तो इंडस्ट्रीज़ में मशीन से भी काम हो रहा है, हाथों से भी काम हो रहा है. जो बिल्डिंग्स बन रही हैं वो भी कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क में आएगा. सो क्योंकि ये क्या यूज़ कर रहे हैं? These are using the material from the primary sector and further they are constructing something. Okay, so this was our secondary sector. The next is our tertiary sector. Now what is tertiary sector? This is an important question beta, that how the tertiary sector is different from other two sector. तो ध्यान से सुनेंगे इसको. आपने देखा है कि प्राइमरी सेक्टर में भी हम लोग कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं. क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? नेचर को यूज़ करके हम प्रोडक्शन कर रहे हैं. ओके. लेकिन टर्शरी सेक्टर और जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें हम लोग फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ में नेचुरल रिसोर्सेज को या प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट को यूज़ करके हम लोग फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं. लेकिन टर्शरी सेक्टर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी अदर टू सेक्टर्स बिकॉज हेयर वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन. दीज एक्टिविटीज़ डोंट प्रोड्यूस अ गुड, they don't produce a good but are a support for the production process. ये क्या करती हैं? ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. ओके. एंड these services are somewhere the basic necessities these days for the growth of the primary and secondary sector. यहाँ पर कुछ भी हम लोग जनरेट नहीं कर रहे हैं, हम कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहे, हम कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को. अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व जो प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन है या होसोएवर, उन लोगों को ये सेक्टर क्या कर रहा है? फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है. कैसी फैसिलिटी? स्कूल्स एंड कॉलेजेस में चले जाओ. अब आप लोग स्कूल आते हो, क्या हम यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं? नहीं. हम लोग आप लोगों को एक सर्विस दे रहे हैं बाय इम्पार्टिंग आवर नॉलेज टू यू. वी आर समवेयर ट्राइंग टू क्रिएट अ ह्यूमन रिसोर्स फॉर आवर नेशन. बैंक हमें फाइनेंशियल हेल्प देता है. होटल्स हमें क्या, वहाँ पे हमें फूड सप्लाई भी हो रही है, रहने के लिए जगह भी मिल रही है. हम कहीं पे जा रहे हैं, हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो वी कैन अवेल द रूम इन अ होटल. वी आर गेटिंग द हेल्प फ्रॉम देम. हॉस्पिटल कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो पेशेंट्स को ठीक कर रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है. ट्रांसपोर्टेशन, शॉप्स,
ये सभी ऐसी एरियाज़ हैं इन विच नथिंग इज़ प्रोड्यूस्ड, बट इनके बिना हमारी लाइफ कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल है, because they are making our life easy, whether we are involved in primary sector or secondary sector. But this tertiary sector, because it is providing a service to both the sector, it act as an important link between the other two sectors, which would not develop in the absence of this sector. तो ये क्या कर रहा है अब, क्योंकि देखो कोई इंडस्ट्री खड़ी करनी है या खेती करनी है, दोनों ही तरह के कामों में क्या चाहिए, हमें पैसा चाहिए। वो हेल्प हमें कहाँ से मिल रही है, बैंक से मिल रही है। आप कुछ प्रोडक्टिव वर्क करना चाहते हो, आपको एजुकेशन मिल रही है। आप किसी डीलिंग के लिए गए हो अपने बिजनेस की, ठीक है, आपके पास वहाँ पर रहने के लिए कोई जगह नहीं है, यू विल अवेल द होटल। आप बीमार हो गए हो, आप वैसे तो कोई और काम कर रहे हो, आप सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व हो, किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में, वट एवर, लेकिन इफ़ यू आर नॉट वेल यू विल गो टू हॉस्पिटल। तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, ये सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अ लिंक। ट्रांसपोर्टेशन, प्राइमरी सेक्टर में सामान प्रोड्यूस हो गया, वो कहाँ जाएगा, टर्शियरी सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा। अभी गन्ना है, कॉटन है, उसको मिल्स तक लेकर तो जाएंगे ना, फैक्ट्री तक लेकर जाएंगे, तो वो कैसे जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही तो जाएगा। आजकल तो ऑर्डर्स हम किस पे दे रहे हैं, फ़ोन कॉल्स पे हम लोग ऑर्डर दे देते हैं, तो कम्युनिकेशन दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टर्शियरी सेक्टर. So in this way, tertiary sector is an important link between the other two sector and is an integral part for their development. And क्योंकि tertiary sector only services provide करता है, इसलिए बेटा हम इसको service sector भी बोलते हैं. एग्जाम्पल हम सब देख सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, टीचिंग, shopkeeping, whatever, in which we are not producing anything, we are just providing the services. Now हमने वैसे तो अभी देख लिया है, इसको और अच्छे से समझते हैं दैट हाउ द थ्री सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर. तीनों ही सेक्टर क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. अगर एक की भी ग्रोथ में कमी आएगी तो ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट सेक्टर है जो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके डेवलपमेंट में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी. बिकॉज ऑल द थ्री सेक्टर्स आर इंटर रिलेटेड. वन सेक्टर नीड्स द हेल्प ऑफ अनदर टू कैरी आउट प्रोडक्शन. अभी शुगर मिल कब काम करेंगी, जब शुगर केन आएगा. शुगर केन कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर में. तो यानी कि शुगर मिल जो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द प्राइमरी सेक्टर. ऐसी कॉटन मिल्स कब काम करेंगी, व्हेन द कॉटन विल बी देयर इन द मार्केट. और कॉटन कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर में. तो इस तरीके से. और तीसरी चीज़, ये तो हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी का इंटरडिपेंडेंस. अब ये प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा कैसे, ट्रांसपोर्ट करेंगे हम, फ़ोन कॉल्स पे हम लोग ऑर्डर देते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ टर्शियरी सेक्टर. वहाँ से शॉप्स में आएगा, शॉप से हम लोग खरीदेंगे, शॉप इज़ अ पार्ट ऑफ टर्शियरी सेक्टर. ठीक है. तो इस तरीके से अब सपोज शुगर केन की प्रोडक्शन नहीं हो रही, लोगों ने बंद कर दी, शुगर मिल बंद है. शुगर मिल बंद है तो लोग जो है शुगर कहाँ से कंज्यूम करेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं टर्शियरी सेक्टर पर भी क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, सेकेंडरी सेक्टर पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा. समझ रहे हो बेटा. अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉटन का. प्राइमरी सेक्टर, कॉटन इज ग्रोन एंड पिक्ड ऑन अ कॉटन फार्म. तो क्या हो रहा है, कॉटन प्रोड्यूस हो रही है प्राइमरी सेक्टर में एक खेत में, वहाँ से वो चली गई सेकेंडरी सेक्टर में, और वहाँ पे क्या किया, उससे थ्रेड बनी और उससे कपड़ा बना. अब उस कपड़े को फर्दर ट्रांसफॉर्म किया फैशन डिज़ाइनर्स ने या टेलर्स ने, उससे कपड़े बनाए और उसको अब सेल करने के लिए बेच दिया शॉप्स पर. तो एक कॉटन जो प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस हुआ था, देखो वो टर्शियरी सेक्टर तक के जो ऑक्यूपेशंस हैं वो उस कॉटन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. सो इन दिस प्रोसेस मैनी अदर सर्विसेज लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, स्टोरेज, गोडाउन्स एक्सेट्रा आर आल्सो नीडेड. और सिर्फ यही नहीं है कि प्रोडक्शन वर्क, अभी सेकेंडरी सेक्टर से जाएगा तो ट्रांसपोर्ट होके जाएगा. सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन हो रही है तो मशीन्स भी चाहिए, मशीन के लिए पैसा चाहिए, पैसा हमें बैंकिंग सर्विस से, इंश्योरेंस सर्विस से मिलेगा. बीच में रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया और ऑर्डर करना है, उसके लिए हम कम्युनिकेशन सिस्टम को हायर करेंगे. फिर सामान मार्केट में बेचना है, ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे. ओके. एडवर्टीजमेंट्स हम लोग देंगे, कम्युनिकेशन
और एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे. सो इन दिस वे ऑल द थ्री सेक्टर्स आर डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर. नेक्स्ट इज, here this activity is given in your book on page number 21. I would like if you'll do it yourself. Okay. अब इसमें आपने करना क्या है, एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. यहाँ पर कुछ सिचुएशन दी हुई हैं और यहाँ पे बताना है कि इस सिचुएशन से आपको क्या पता चला. ये चारों ही सिचुएशन शो कर रही हैं कि कौन सा सेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है. सॉल्यूशन इज़ हेयर, बट आई वांट दैट यू फर्स्ट रीड इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ. उसके बाद practice these questions also. And what you have to do here in the third question, classify the following list of occupation under primary, secondary and tertiary sector. इनको रीड करो. जैसे टेलर हो गया, बास्केट वीवर हो गया, फ्लावर कल्टीवेटर हो गया, ये कौन से सेक्टर में आते हैं? प्राइमरी का पार्ट है, सेकेंडरी का पार्ट है या टर्शियरी का पार्ट है? ओके स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा. विल कंटिन्यू द चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड हैव अ गुड डे.